Hi everyone, welcome back to my channel Infinity Learnings. Today is our second session on vocabulary through root words. Our first session is already been released and the word that is trust, FID, that I already explained in my first video. And these videos that I am providing are important for those who are preparing for government competitive exams such as SSC exams or wherever English are asked. And the people who wants to use new words for their communication, these words will be also helpful for them. So let's start today our session, but before that I would like to do a quick revision on my first video, because providing words is not the solution. Revising back to back again the words is the solution, so that you will memorize that word. So whenever you see that in the examination you are giving, you will know that FID means trust, and you know the meaning out of 4 that is trust, then you will take that mark and that's good for you. So the word that I explained on my previous class was FID, and already told it the meaning is trust. Let's do a quick revision on that. Let's see. Fidelity. Those who don't know the meaning of fidelity, they can watch my first video about what is this is all about. And let's see the words that I am providing. Sometimes synonyms and antonyms are also important parts in our examination. The question, like I am given the example I have given, the question are asked like that only, what is the synonyms of that. So let's start with our word that the previously I explained, fidelity. And the 3 words I already told you, like faithfulness, loyalty and allegiance. I already explained these 3 words on my video. Those who don't know the meaning of any word, they can watch my first video. And the new words that I am providing, that more synonyms which are asked in the competitive exam, that words only I am providing. The words are fealty, obeisance, constancy, dutifulness and homage. And to learn this word you can make like निमोनिक्स या समथिंग्स लाइक दैट. फिल्टी है यानी फील कर रहा, तो ट्रस्ट करा जाए इसके ऊपर. ओबीसीएंस यानी ओबीसीएंस को टू रिमेंबर डबल यू कैन लाइक मेक ओबीसीएंस, ओबे करता है तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. कॉन्स्टेंटी, ये कॉन्स्टेंट बार बार मेरी हेल्प करते रहता है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं. ड्यूटीफुलनेस यानी ड्यूटी पूरा फुल करता है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. होमेज क्या हो जाए कि होम पे है और एज वाला आदमी है तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं. तो इस तरह से आप अपना ही वर्ड बना के आप लोग खुद रिमेंबर कर सकते हैं, आप लोग खुद बना सकते हैं. ये मैंने नॉर्मली आपको एग्जांपल दे दिया कि ऐसे रिलेट कर करके आप लोग याद रखेगा. और एंटोनिम्स, जस्ट एंटोनिम्स इन अपोजिट. अपोजिट में क्या है, तो 2 वर्ड मैंने आपको पहले ही बता चुका है, डिसलॉयल, एक परफिडी. और आज का जो मेरे 3-4 वर्ड है वो क्या है, ट्रैकरी, ट्रैचरी, ट्रीजन, शिडिशन, बिट्रेयल. और ये चारों का मीनिंग एक ही चीज़ जा रहा, धोखा. धोखा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता, कोई दिक्कत नहीं. धोखा जाता है नॉर्मल मीनिंग इन चारों का. तो या तो ट्रैकरी रहे या ट्रीजन रहे या सिडिशन या बिट्रेयल, ये चारों का मीनिंग जाता है धोखा. ट्रैकरी मीन्स भी धोखा, सिडिशन मीन्स भी धोखा, सिडिशन मतलब भी धोखा, मतलब इन द सेंस ये धोखा जा रहा है. यहाँ ट्रस्ट है तो यहाँ धोखा है, समझ रहे हो बात. यहाँ ट्रस्ट है तो यहाँ धोखा. सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट. तो जैसा कि एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है कि फिडेलिटी का सिनोनिम्स क्या जाएगा इसमें. जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, ये फिडेलिटी का क्या जाएगा इसमें. ये तो अफेक्शन, इसमें 2 वर्ड पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा. एक तो हो गया एलिजियंस और एक हो गया लॉयल्टी, क्योंकि मैंने दोनों वर्ड यहाँ लिखा, एक लॉयल्टी भी है, एलिजियंस है. लेकिन मैंने एलिजियंस का मीनिंग पहले ही बता चुका है, जो कि मेरे फर्स्ट क्लास वोकैब थ्रू रूट्स वर्ड्स में मैंने बता दिया. जो नहीं देखे तो वो जाके देख ले. और इसका करेक्ट आंसर में बोलना, अफेक्शन मीन हो जाता है किसी के प्रति अफेक्शन रखना, प्यार, लाड, दुलार, ये सब रखना. एक्यूरेसी हो जाता है कि आप कितना चीज़ को एक्यूरेट हो जाता है. एक्यूरेसी मतलब आपको कुछ बनाने में आपकी एक्यूरेसी क्या है, 90% है. कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी एक्यूरेसी क्या है कि 85%, तो एक्यूरेसी हो गया.
तो यही दोनों में से करेक्ट आंसर होगा। जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो जा रहा है वो लॉयल्टी, क्योंकि एलिजियंस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एलिजियंस होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री, लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री, कंट्री के प्रति लॉयल्टी वो होता है। और यहाँ जो फिडेलिटी है मतलब लॉयल्टी तो नॉर्मल लॉयल्टी पे ही आप लोग जाएगा, कुछ अलग वे में पहुँचेगा तभी। और ये सारे वर्ड्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने सारा वर्ड दे दिया है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वर्ड, और आज का वर्ड हम लोग चालू करेगा। और हम लोग का आज का वर्ड हम लोग का जाएगा एलओसी, एलओसी, एलओक्यू। तो प्रीवियस वर्ड इसलिए याद दिलाया कि जो मैंने पहला वीडियो डाला उसमें जो मीनिंग है, जो बताया हर वर्ड का मीनिंग आप लोग को याद रहे, इसलिए मैंने सेकेंड क्लास के भी थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन डाल दिया ताकि आप लोग को याद रहे। कुछ नए नए वर्ड्स डाला जो आपको इंटरेस्टिंग करेगा पढ़ाई के प्रति। आज का वर्ड हम लोग का रूट वर्ड जाता है एलओसी या एलओक्यू। तो नॉर्मली इसको एलओसी और एलओक्यू दो वर्ड, इन लोग दोनों का मतलब जाता है या तो स्पीक करना, से करना, टेल करना मतलब बातचीत करना, कुछ बोलना, कुछ बातचीत करना। तो नॉर्मली याद रख सकते हैं कि एलओसी में बातचीत होता है। एलओक्यू लोग को आप डिफरेंट कर सकते हैं लोग से, और जहाँ लोग रह गए वहाँ बातचीत चले गए, नॉर्मल सा। हम लोग अपना पीडीएफ में कंटिन्यू करते हैं आज का। तो आज का वर्ड है हम लोग का लोक। उम्मीद होगा पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर जूम इन जूम आउट में अगर मेरा गड़बड़ी हो जा रहा है कुछ, क्योंकि मैं न्यू है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा। वीडियो अपलोड होने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो जैसा कि वर्ड देख रहे हैं आप लोग एलओसी या एलओक्यू, और इसका मीनिंग साफ साफ जा रहा है टू स्पीक या टॉक, बातचीत करना। तो सबसे पहला वर्ड आता है लोकेसियस, IOS। IOS जहाँ रहता है वो एडजेक्टिव होता जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, आपको बस याद दिलाने के लिए कह रहे हैं। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या जा रहा है टॉकेटिव, यानी बहुत बातचीत करता है। तो लोकेसियस से रिलेटेड मुझे और भी कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग का वर्ड क्या है लोकेसियस, तो टॉकेटिव तो आप लोग को वहाँ दिख गया, यानी टॉकेटिव यानी बहुत बातचीत करता है। और बहुत बातचीत में और भी सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे आता है गैरुलस, वर्बोज भी होता है बहुत बातचीत। वर्डी हो जाता है। और आपका गैबी भी कहते हैं, गैबी भी जो ज़्यादा बातचीत है। और एक रैम्बलिंग भी बोल सकते हैं, रैम्बलिंग। तो ये सारे वर्ड का सेंस एक ही चीज़ में था, जो ज़्यादा टॉकेटिव यानी बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, लोकेसियस। मुझे वर्ड दिखा इसलिए याद आया, गैरुलस भी होता है बड़बोला, बहुत ज़्यादा, वर्बोस यानी बहुत ज़्यादा बोल रहा, वर्डी भी बहुत ज़्यादा, गैबी भी बहुत ज़्यादा, और रैम्बलिंग भी देखे तो बहुत ज़्यादा। ये सब नॉर्मली है, रैम्बलिंग वैंगलिंग जाता है। हम लोग बैक टू आवर पीडीएफ आ जाते हैं। तो नए वर्ड कुछ दिखे इसलिए मैं बता दिया, मैं जूम कर लेता हूँ। तो लोकेसियस का मीनिंग आपका इलेक्वेंट, तो एलओक्यू यहाँ भी है, एलओक्यू यहाँ। इलेक्वेंट हो जाता है कि जो बहुत प्यार से बोलता है और बहुत क्लियरली बोलता है, बहुत फ्लुएंट है, मतलब उसका मिस्टेक ना के बराबर है। तो दोज हु स्पीक्स या टॉक वेरी फ्लुएंटली, बहुत अच्छा से बातचीत करता है, वेरी क्लियरली, बहुत क्लियर रहता है अपने चीज़ में, उसको कहते हैं इलेक्वेंट। तो कभी कभी आप लोग सुनते होंगे या कभी पॉडकास्ट या कभी इंग्लिश का आप लोग कुछ देखते हैं, तो जो अच्छा बोलता है वहाँ पे आप देखेंगे ही इज़ एन इलेक्वेंट स्पीकर, यानी बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत क्लियरली और बहुत फ्लुएंटली बोलता है, तो इलेक्वेंट हम लोग उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग आ जाते हैं सोमनालिक्वेंट। सोम मतलब नींद में, लोग आपको दिख लिया यानी बातचीत करे यानी कुछ, यानी नींद में बातचीत, यानी बहुत लोग आप लोग देखते हैं जो नींद में भी बड़बड़ करते रहता है या कुछ बोलते रहता है, तो सोमनीलोक्वेंट कहते हैं। सोमनीलोक्वेंट उसको कहते हैं, यानी टॉकिंग या मटरिंग वाइल स्लीप, यानी नींद में ही बातचीत कर रहा है या बटर कर रहा है या कुछ कर रहा है, मटरिंग एंड टॉकिंग वाइल एस्लीप, यही है सोमनीलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आ जाते हैं हम लोग का मैग्नीलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट। और ये आपको वर्ड से ही लग जा रहा है कि कुछ बड़ा वर्ड है,
तो मीनिंग भी उसी तरह का जा रहा है, बड़ा। तो एक बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, यानी बढ़ चढ़ के मतलब बड़ा बड़ा चीज़ बोल के एकदम, हाँ ये यही है, ये रेस्टोरेंट यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट, यहाँ से कुछ है, यहाँ जो वैरायटी मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि वे होता है ताकि किसी और को इम्प्रेस करता है। मैग्नीलोक्वेंट और ये सब नॉर्मल सा हो जाता है। मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट का मतलब वही हो गया, बम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, टू इम्प्रेस समवन, इम्प्रेस समवन, टू वे ऑफ टू इम्प्रेस समवन, बढ़ा चढ़ा के बोला ताकि इम्प्रेस कर सके। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बैंडीलोक्वेंट। तो बैंडीलोक्वेंट से हमको याद आ रहा है एक वर्ड हम लोग का था कि ब्लेंडिशमेंट। एक वर्ड आ जाता है कि ब्लेंडिशमेंट एक वर्ड होता है, और ब्लेंडिशमेंट का ही मीनिंग जाता है फ्लैटरी। फ्लैटरी यानी चापलूसी, फ्लैटरी यानी चापलूसी, ब्लेंडिशमेंट का ही वर्ड जा रहा है चापलूसी, फ्लैटरी। तो हम लोग आते हैं अपने PDF बैक और सॉरी थोड़ा जूम कर लो ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत नहीं। इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ तो यहीं पे कहाँ गया ये ब्लेंडीलोक्वेंट। तो ब्लेंडी का मीनिंग ही बता दिया कि फ्लैटरी है, फ्लैटरी स्पीच है, फ्लैटरी स्पीच है। तो ब्लेंडीलोक्वेंट आप लोग को दिख गया, यानी कि फ्लैटरी स्पीच यानी चापलूसी से स्पीच। और इसका मीनिंग भी आप लोग को लिख दिया क्योंकि यूजिंग शुगर कोटेड वर्ड्स। बहुत जगह देखिएगा आप लोग, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहा तो आप लोग बोल देते ये शुगर कोटेड पर्सन है, शुगर कोटेड पर्सन। तो यूजिंग शुगर कोटेड वर्ड्स टू फ्लैटर समवन, किसी की चापलूसी करने के लिए इतना शुगर कोटेड बोलना कि हम आप ही है जो है, नहीं तो सब पानी कम है, नॉर्मल सा। ये तो ब्लेंडीलोक्वेंट वही जाता है, यानी चापलूसी वाला बात करना, नॉर्मल सा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का मेलीलोक्वेंट। मेलीलोक्वेंट से भी हमको कुछ याद आ रहा, मेलीलोक्वेंट, मेलीलोक्वेंट। तो मैल का मतलब ही आपको मेली का मतलब क्या जाता है, हनी या तो स्वीट, मिठास से भरा हुआ, हनी या फिर स्वीट। मेली का वही मतलब चल जाता है। तो हम लोग अपने PDF पे आते हैं और मेलीलोक्वेंट। तो मेली का मतलब ही वही हो जा रहा कि वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, बहुत स्वीट वॉइस। वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, जो बहुत प्यार पूर्वक आप बोले, इतना मिठास उसका आवाज़ में ना आपको मन प्रसन्न हो जाएगा, हिंदी वालों लोग के लिए। तो मेलीलोक्वेंट का मीनिंग वही जा रहा कि वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग का वेंट्रीलोक्वेंट। तो वेंट्रीलोक्वेंट इतना बड़ा चढ़ा आपको मीनिंग दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ तो कभी कभी आप लोग कुछ मोबाइल या TV वगैरह में शो देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है और हाथ में एक गुड्डा गुड्डी टेडी टाइप का लिया रहता है और वही बोलता है लेकिन बुलवाता है टेडी से। तो वेंट्रीलोक्वेंट उसी को कहते हैं। अब इसका मीनिंग हम लोग इंग्लिश में इधर देख लेते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग इन विच ए पर्सन चेंजेस हिज और हर वॉइस सो डेट इट अपीयर्स दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से ही आवाज़ आ रहा है। तो उसी को कहते हैं वेंट्रीलोक्वेंट हम लोग। जो गुड्डा हाथ में डालता है मतलब ये बोलता है लेकिन आवाज़ वहाँ से आ जाता है। अब आ जाता है डेंटिलोक्वेंट। डेंटिल से ही लग जा रहा है, दांत से ले रहा है। तो बहुत जन दांत दबा के बात करते हैं। द वे ऑफ स्पीकिंग विद ए क्लेंस टीथ, दांत दबा दिया, दांत को थोड़ा यूज़ कर लिया, जो टीथ को यूज़ कर लेते उसको डेंटिल। डेंटिल्स के पास ही लग रहा है, तो नॉर्मली आप लोग को याद रहेगा जो दांत वात से। अब आता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन के लिए हम लोग आते हैं, हम लोग का वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। तो लोक तो आ ही गया, LOC तो आ ही गया, और सर्कम को सर्कल से याद रखिएगा, मतलब घुमा फिरा के बात करना। इसका मीनिंग यही जा रहा है कि घुमा फिरा के बात करना, सर्कमलोक्यूशन। और इसमें एक इडियम्स भी आता है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, बीट अराउंड द बुश। आप लोग सुने होंगे बीट अराउंड द, या नहीं भी सुनेंगे तो मैं बता दूंगा, बीट अराउंड द बुश। ये इडियम्स का हिंदी मीनिंग जाता है मुहावरे, यानी बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करना। और एक और जल जाता है आपका राउंड अबाउट भी बोल सकते हैं इसको, राउंड अबाउट। कोई भी चीज़ घुमा फिरा के बोलना, तो सर्कमलोक्यूशन का वही चल जा रहा जो वर्ड आया, इसलिए मैं बता दिया। तो सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग वही जा रहा है कि इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, तो आप बोलेंगे
कि आपका चैनल अच्छा है, आपने क्या थंबनेल भी अच्छा डाला, तो आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे कि मेरा वीडियो अच्छा है कि नहीं। तो यही है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब ये हो जाता है घुमा फिरा के बात करें, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। और यहाँ पे ईडियम्स मैंने डाल दिया है, बीट अराउंड द बुश, जो कि इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, पूछा जाता है कभी कभार, बीट अराउंड द बुश। अब सोलोक्वी, सोलोक्वी है तो सोल का मतलब ही हम लोग का चल जाता है कि सोल का मतलब हम लोग का चल जाता है अलोन। सोल का मतलब ही चल जा रहा है अलोन। तो सोलिलोक्वी क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने से ही बात करना या वन टू वन बात करना, एलोन में ही बात करना, वन सेल्फ यानी खुद से। हाँ, हम ऐसे करते तो ये होता, हम ऐसे करते तो वो होता, मतलब कभी कभी को देखते हो ना, अकेले में अपने से बात कर रहा था। तो सोलिलोक्वी यानी सोली यानी एलोन है। नेक्स्ट वर्ड आता था कोलोक्वल। कोलोक्वल सब में आप लोग देख रहे हैं एलओक्यू आ रहा है या एलओसी आ रहा है। कोलोक्वल क्या हो गया? एक इनफॉर्मल स्पीच या कैजुअल कन्वर्सेशन या म्यूचुअली नॉर्मल दोस्त लोगों में बातचीत चल रहा है, या फैमिली में कैजुअल कन्वर्सेशन है, हाँ क्या बना हुआ, क्या खाना है, कैसा चल रहा तुम्हारा क्लासेस, कैसी हो रही प्रिपरेशन, क्या हो रहा नहीं चल रहा, जॉब लगा नहीं लगा, नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन, तो उसको कोलोक्वल कहते हैं। अब ऑब्लोक्वी आ जाता है, ऑब्लोक्वी, ऑब्लोक्वी आ जाता है, ऑब्लोक्वी। तो ओ भी जो है ना, ये ऑप का मतलब ही जाता है कि बैड। अब बैड जैसे आ गया, बैड मतलब बुरा, बैड का मतलब, तो ओब्लोक्वी, लॉक का मतलब तो बोलना यानी बुरा किसी के लिए बोलना, यानी एन एब्यूसिव लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समवन। एक एब्यूसिव लैंग्वेज, एब्यूसिव तो आप लोग समझ गए होंगे कि बैड लैंग्वेज, यूज टू क्रिटिसाइज यानी किसी को बदनाम या नीचा दिखाने के लिए, ब्लेम समवन या ब्लेम करने के लिए समवन को हम लोग जो एब्यूसिव लैंग्वेज हो, ऑब्लोक्वी। ऑप का मतलब ही बैड और लोक का मतलब बोल रहे हैं यानी गलत कुछ बोल रहे थे, एब्यूसिव है, क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी को ब्लेम कर रहा, हाँ तुम ही किए, ये क्यों, या नीचे दिखाना। इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन का मतलब ये जाता है कि इंटर यानी दो जन का बीच में, इंटर स्टेट कंपटीशन या कुछ भी रहे, तो इंटरलोक्यूशन मतलब दो चीज़ का बीच में ही बात करना, दो चीज़ का बीच में ही बात करना। तो इंटरलोक्यूशन का मतलब क्या होता है कि टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा, इंटर मतलब दो पब्लिक, दो या दो से ज़्यादा पब्लिक के बीच का कन्वर्सेशन को इंटरलोक्यूशन कहते हैं। इलोक्यूशन, तो इलोक्वेंट हम लोग पहले ही आगे देखे इलोक्वेंट, तो इलोक्यूशन लोक आ गया, इलोक्वेंट हो गया। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अब आर्ट ऑफ पब्लिक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में जो अच्छा से बोलता था, हम लोग ऊपर भी देखे थे कि ये था इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वन हु स्पीक्स वेरी, वन हु स्पीक्स हम लोग यहाँ देखे थे, वन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो इलोक्वेंट स्पीकर। और वहीं नीचे हम जा रहे इलोक्यूशन, इलोक्यूशन भी हो जाता है कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, नॉर्मल सा बात है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो ये 13 से 14 वर्ड आप लोग को ये 13 से 14 वर्ड मैंने दिया जो कि स्पीक रिलेटेड था। टॉकेटिव है, इलोक्वेंट स्पीकर है, नींद में बात करता है, मैग्नीलोक्वेंट बड़ा चढ़ा के बोलता है, ब्लैंडीलोक्वेंट यानी चापलूसी वाला बातचीत करता है, मैलीलोक्वेंट यानी मीठे आवाज़ में बात है, वेंट्रीलोक्वेंट यानी जो शो वगैरह में टेडी वेडी धर के बाद है, डेंटीलोक्वेंट यानी डेंटी दांत से लग गया दांत से, सर्कमलोक्यूशन घुमा फिरा के बात करना, सोलोक्वी यानी अकेले एलोन अपने में बात करना, कोलोक्वल हो गया कि कैजुअल कन्वर्सेशन करना, ऑब्लोक्वी हो गया यानी एब्यूसिव किसी के लिए कुछ बोलना ताकि क्रिटिसाइज या ब्लेम कर सके, इंटरलोक्यूशन हो गया दो जन से ज़्यादा या दो जन के बीच का बातचीत, और इलोक्यूशन हो गया कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। और स्पीकिंग का ही चल रहा तो एक दो चीज़ आप लोग को और बता देता हूँ। अभी स्पीकिंग का चल रहा तो एक चीज़ और बता देता हूँ। स्पीकिंग का चल रहा हम लोग उतना देख लें। अब क्या होता है कि कभी कभी आप लोग एक मोनोलॉग, प्रोलॉग, एपिलॉग, ये चीज़ आप लोग सुने हुए कि नहीं, हम पता नॉर्मली बता दे रहे हैं। एक तो होता है मोनोलॉग, मोनो मतलब कोई ड्रामा व्रामा जब होता है तो उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, एक मोनोलॉग हो जाता है। मोनोलॉग यानी सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर है भाई, मोनो है यानी एक जन बोलने वाला है, और लिसनर अवेलेबल है, लिसनर अवेलेबल है। मोनोलॉग मतलब सिंगल स्पीकर। और सेकेंड में रहता है प्रोलॉग, जो कि ड्रामा या कोई चीज़ से पहले आप लोग सुनेंगे, प्रोलॉग है, एपिलॉग। प्रोलॉग क्या हो जाता है कि इंट्रोडक्टरी स्पीच है, एक स्पीच होता है, इंट्रोडक्टरी स्पीच हो जाता है ऑफ ए ड्रामा, ऑफ ड्रामा।
मोनोलॉग प्रोलॉग ड्रामा का। और मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ, थोड़ा इधर मचा देता। और तीसरा जो वर्ड आ जा रहा है हम लोग का मोनोलॉग प्रोलॉग के बाद आता है एपीलॉग। सॉरी, यहाँ डाल दे रहा हूँ, मैं यह हटा ही देता हूँ। एपीलॉग, एपी का मतलब ही जाता है कि लास्ट। प्रोलॉग आप लोग देख लिए कि इंट्रोडक्शन स्पीच था ऑफ ड्रामा, तो एपीलॉग क्या हो गया, कंक्लूडिंग स्पीच। हाँ, ये अब समाप्त हो रहा। कंक्लूजन जो लास्ट में रहता है, हर चीज़ लास्ट में था। कंक्लूडिंग स्पीच देना, कंक्लूडिंग स्पीच देना, तो एपीलॉग। तो नॉर्मली ये मोनोलॉग, प्रोलॉग, एपीलॉग। प्रोलॉग आप लोगों को बता दिया, इंट्रोडक्शन स्पीच वाला। मोनोलॉग हो गया जिसमें सिंगल स्पीकर अवेलेबल है। तो ये सब ड्रामा के टाइम भी यूज़ होता है ये सब वर्ड, क्योंकि टॉक रिलेटेड ही हम लोग का वर्ड चल रहा, तो टॉक रिलेटेड ही हम लोग का वर्ड चल रहा, तो सोचा ये वर्ड भी सारे एक्सप्लेन कर दूँ। तो आज के लिए मैं यहीं पे द एंड करता हूँ अपनी क्लास। और उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और लर्निंग में और कंटेंट में और कुछ जानने में, तो डू कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन माई जर्नी ऑफ टीचिंग ऑल द थिंग्स, इन्फिनिटी थिंग्स, इन्फिनिटी लर्निंग्स। इन्फिनिटी आप लोग एवेंजर्स तो देखे होगे, इन्फिनिटी वार आखिरी सांस तक। और इन्फिनिटी लर्निंग यानी हर चीज़ में आपके साथ लास्ट तक हूँ। आप लोग क्या दिक्कत हो रहा, नहीं दिक्कत हो, डू कमेंट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए कम्पिटिटिव एग्जाम। ये मेरे वोकैब का सेशन चला और सब अच्छे अच्छे वर्ड मैंने कलेक्ट करके एक PDF मैंने रखा है, ताकि आप लोग को धीरे धीरे इससे पढ़ा सकूँ। और हर वर्ड में नेक्स्ट क्लास में पहले उस वर्ड का मैं रिवीजन कराऊंगा, ताकि आप लोग वो चीज़ें भूलें ना और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते रहें। तो पहला जो वर्ड था मैंने फिट था, आज जो वर्ड है LOC है, LOQ। एंड डू एन्जॉय एंड होप you are learning a lot. Thank you very much for joining my class and supporting me. Thank you.